Dear student friends, I am Dr. Godbola Mahendra Tukaram welcoming you all again in my today's presentation. The today's presentation is basically focused on the polity, and in this polity lecture, I will talk about the historical background of the Indian Constitution or the historical development of the Indian Constitution. While talking about the historical development of the Indian Constitution, there are the two branches. The first branch or the first theme of presentation will be based on the rule by East India Company, and the rule of the East India Company or the control of the East India Company from a different laws and regulation through the British Parliament right from the 1773. So in this lecture, I will talk about the span of the controlling of the East India Company right from the 1773, and from this 1773 to 1858, or sometime we may say right up to 1853. That is one span of the time. This is a one branch. And while talking about the rule by crown means the rule by British Parliament. Rule by the British Parliament. Two things, two branches, and the total span of the historical development of the Constitution is supposed to be 174 years. Okay? So in today's presentation, I will talk the historical background of the Indian Constitution with special reference to rule by East India Company or EIA. First upon, I will go back from this 1773 up to 1498. We see during this span, the first Portuguese explorer Vasco da Gama has reached to Indian subcontinent. He landed at Calicut in the 1498. Then few agents of the company, since the formation took place, certain merchant of the British or those who were interested for the trading, they were started their union, and later on it came into exist as the East India Company. And Robert Clive has played a very important role for that formation of the East India Company in the territorial region of the Bengal, especially Calcutta or at the William Fort. While talking about the agent, the Indian Mughal Empire, the one person, William Hawkins, he was the captain he was associated to the East India Company later on. East India Company के एक मेंबर थे जो हमारे कैप्टन, मतलब वो जो कैप्टन विलियम हॉकिंस है, ये आगरा के जो जहांगीर थे एम्परर, आगरा के जहांगीर एम्परर, उनके कोर्ट में चले गए और उन्होंने ये कहा इन 1608 में उन्होंने ये कहा कि सर, हम आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें आपके टेरिटोरी में, आपके हिंदुस्तान में, यानी आपके रीजन में हमें एक परमिशन दीजिए टू सेल आवर गुड्स और टू स्टार्ट आवर बिजनेस और द ट्रेडिंग. तो जहांगीर साहब ने यह कहा कि हाँ चलो ठीक है, यू कैन गो अहेड विथ योर बिजनेस, नो इशू. तो ये जहांगीर साहब ने क्या किया, उनको परमिशन देने के बाद कैप्टन एंड अदर्स जो एसोसिएट थे कंपनी से कनेक्टेड, तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट स्टार्ट किया. वैसे उन्होंने 3 ट्रेडिंग पोर्ट स्टार्ट किए थे. एक बॉम्बे में किया था, एक मद्रास में किया था और एक बंगाल में किया था. ठीक है. तो द इकोनॉमी सक्सेसफुली सिक्योर्स द रॉयल फरमान फ्रॉम द जहांगीर 1613. ये 1613 में
जैसे रानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ये यूरोपियंस को, जो कंपनी बाद में उन्होंने बनाई, जो मर्चेंट्स थे यूरोप से आए वाले, तो उनको ब्रिटिशों को, जैसे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने परमिशन दिया था कि जाओ और आप इंडिया में, ईस्ट इंडिया में आप अपना कारोबार करो। तो वो इशू लेकर के जहांगीर ने, हमारे इंडियन जो एम्परर थे, जो मुगल एम्परर थे जहांगीर, उन्होंने ये विलियम्स को, मतलब विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस को परमिशन देने के बाद ये 1613 में उन्होंने एक गुजरात के सूरत में एक फैक्ट्री बना दी। ठीक है, तो ये फैक्ट्री बनाने के बाद जो कंपनी था वो कंपनी एक्सपांड होने लगा, कंपनी का एक्सपेंशन होने लगा। जैसे देखिए ये बॉम्बे है, बॉम्बे, फिर यहां पर जो है चेन्नई, और चेन्नई से लेकर के उन्होंने जो अपना एक्सपेंशन है वो मद्रास की ओर से ईस्ट में करना स्टार्ट किया। मतलब कंपनी का जो साइलेंट फीचर अगर हम देखें, कंपनी का जो नेचर एंड जो बिहेवियर था, कार्य प्रणाली जो उनकी थी, वो ट्रेडिंग से लेकर के टेरिटोरियल रीजन में उनका जो सक्सेशन चल रहा था, कि एक कंपनी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से जानी जाती है, और उनका मेन कारोबार जो था इट वाज रिलेटेड टू द ट्रेडिंग और द बिजनेस। बट ये ट्रेडरों ने क्या किया, हमारे लैंड के ऊपर अपनी हुकूमत स्टार्ट किया। दैट इज सी द एक्सपांशन इन्फ्लुएंस, वो एक्सपांशन, ये उनकी बढ़ती हुई जो हुकूमत थी, बढ़ता हुआ जो उनका मतलब जो प्रभाव था हमारे देश के अंदर, खास करके ईस्ट इंडिया, कोलकाता और उसके आसपास, जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये सब रीजन को हम मतलब बंगाल प्रांत कहते हैं। तो ये रीजन में उन्होंने क्या किया, फ्रॉम ट्रेडिंग इन बिजनेस, या मतलब कोई वस्तु को सेल करना, फ्रॉम ट्रेडिंग टू टेरिटोरियल पावर, पहले ट्रेडिंग की और बाद में एक भूभाग के ऊपर अपनी सत्ता उन्होंने स्टार्ट किया। दैट इज फ्रॉम ट्रेडिंग टू द टेरिटोरियल पावर, द कंपनीज जर्नी लेट द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस तरह से उन्होंने पहले अलग अलग राजाओं को रिक्वेस्ट करके उनके कोर्ट में रह के, विलियम हॉकिंस जो थे एक कोर्टियर थे, जैसे अगर आपने देखा कि वो पहले दरबार में आ चुके थे, आगरा के दरबार में, और बाद में उन्होंने कंपनी के लोगों को सहायता करनी स्टार्ट की और अपना दरबार उन्होंने मतलब और जो मतलब परमिशन ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बिजनेसमैन थे उनको रानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने पार्लियामेंट से परमिशन दिया, रानी ने परमिशन दिया उनको, और बाद में जो है तो उन्हें हमारे जो सुप्रीमोस थे देश के अलग अलग जो उनके मतलब जो राजाओं थे उस जमाने के मुगल्स, तो उन्होंने भी उनको परमिशन देने के बाद ये आगे उन्होंने देखिए ये मतलब वास्को द गामा है, ये केप ऑफ होप टाउन से हमारे इंडिया में आए थे, कालीकत में आए थे। ठीक है, ये अपने जहाजों से इंडिया में आ गए थे। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो जहांगीर साहब ने परमिशन देने के बाद जो हमारे देश के भीतर बॉम्बे, मद्रास एवं सूरत, महाराष्ट्र में बॉम्बे, गुजरात में सूरत एवं मद्रास, ये तीन जगह पर उन्होंने अपनी जो कंपनी थी वो कंपनी के आउटपोस्ट उन्होंने स्टार्ट कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के आउटपोस्ट स्टार्ट कर दिए, बिजनेस वहां से उन्होंने स्टार्ट किया, उनके ऑफिसेस उन्होंने बनाए। जैसे बाद में उन्होंने और अपना जो ऑफिस बनाया था विलियम फोर्ट नाम का, तो आज हमारा जो इंडिया का ईस्टर्न कमांडेंट है तो वो कमांडेंट वहां पर है, उसके बारे में और हम चर्चा करेंगे। जब प्लासी की बात आ जाएंगी तब मैं सूरत की एक्चुअली आई विल टॉक अबाउट द प्लेस ऑफ द प्लासी बैटल एंड आई विल टॉक अबाउट द विलियम फोर्ट, हाउ द विलियम फोर्ट हैज बीन रीनेम्ड by the Indian Armed Forces in 2025. The pre-existing William Fort, nowadays it is known as the Vijay Durg. जैसे हमारे शिवाजी महाराज का जो फोर्ट था, जैसे मतलब कोस्टल रीजन में पश्चिमी तट पर जो एक वो जमाने का इंपॉर्टेंट एक मतलब व्यू पॉइंट था, तो इस प्रकार जो है तो विलियम फोर्ट का नाम चेंज करके
और उसके अंदर के जो मतलब कई पॉइंट्स है, तो उसमें हमारे जो मतलब मार्शल थे इंडिया के, मतलब 1971 में पाकिस्तान के साथ जब वार हुआ था, उनमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। वैसे मानेक शॉ, उनके बड़े बड़े हॉल को नाम दिया गया है, उनके अंदर के, उनके भीतर के विलियम फोर्ट जो है बंगाल का या मतलब कोलकाता का, उसको अलग अलग नाम दे दिए। कमिंग टू द सूरत ऑफिस और द आउटपोस्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे देखिए सूरत में उन्होंने 1613 में पहले उन्होंने अपना आउटपोस्ट स्टार्ट किया टू ट्रेडिंग। द कंपनीज फर्स्ट परमानेंट ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया, इंग्लिश established this base on the western coast of the Gujarat, and this permission of the Mughal Emperor Jahangir, after the defeating of the Portuguese at the Battle of the Swally। ये जो ब्रिटिश थे, ये ब्रिटिशों ने, उनके पहले जो हमारे इंडिया के अंदर कई दूसरे फॉरेनर्स थे, जैसे पोर्तुगीज भी थे, फ्रेंच भी थे, तो उनके साथ उन्होंने कई लड़ाइयां करके, कई वॉर्स करके उनको भी डिफीट कर दिया था। तो देखिए गुजरात में, सूरत में उन्होंने एक अपना परमानेंट ऑफिस बना दिया 1913 में गुजरात में। उसके बाद मद्रास में चले गए। मद्रास में कोस्टल रीजन है जो तमिलनाडु में आता है, चेन्नई, मद्रास, आज की चेन्नई, पहले वाली मद्रास। तो वहां पर कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद उन्होंने 1639 में उन्होंने दूसरा ऑफिस बना दिया, एंड दैट वाज सिचुएटेड ऑन द साउथ ईस्टर्न कोरोमंडल कोस्ट, प्रेजेंट डे तमिलनाडु स्टेट के अंदर जो चेन्नई है, मद्रास है, वहां पर उन्होंने अपना ऑफिस बना दिया। द कंपनीज फर्स्ट मेजर टेरिटोरियल एक्विजिशन, ये कंपनी का बहुत ही बड़ा एक रीजन था, टेरिटोरियल रीजन बोले तो एक बहुत बड़ा भूभाग था, उसके ऊपर ये दूसरा उन्होंने अपना ऑफिस बनाया। और ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी लीज्ड द लैंड एंड द कंस्ट्रक्टेड फोर्ट सेंट जॉर्ज, एक फोर्ट मतलब उन्होंने तमिलनाडु के अंदर चेन्नई में या मद्रास में एक फोर्ट बना दिया उन्होंने, सेंट जॉर्ज, ओके, एंड विच क्विकली बिकम देयर स्ट्रेटेजिक हब फॉर द ट्रेड इन ईस्ट। वो उनका एक, उन्होंने बहुत ही बड़ा एक मतलब कॉम्प्लेक्स बना दिया, एक बड़ा एक ऑफिस बना दिया, और वहां से ईस्ट इंडिया की, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की वो रीजन में उन्होंने, वहां से नजदीक ही था उनको। देखिए मद्रास से यहाँ पर आपको मतलब बिहार और वो जैसे उड़ीसा, ये स्टेट उसके बगल में ही है, ऊपर ही साउथ ईस्ट में। तो इस प्रकार उन्होंने अपना दूसरा ऑफिस बना दिया। फिर महाराष्ट्र की बात है, 1639 के बाद 1668 में उन्होंने क्या किया, एक दूसरा जो ऑफिस है उनका, दी लोकेटेड वेस्टर्न मतलब महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे में, उन्होंने नासिक के नजीक, जैसे हम बॉम्बे कहते हैं उसे, तो यहां पर दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्टिफाइड रीजन उन्होंने बनाया कंपनी का। जो नेक्स्ट थर्ड ऑफिस था, ये इस प्रकार कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुजरात फॉलोड बाय मद्रास और बॉम्बे 1613, 1639 एंड 1668 ऐसे अलग अलग मतलब 16वीं सदी में उन्होंने अलग अलग अपने ऑफिसेस बनाए। तो ये ऑफिसेस बनाने के बाद उनका जो ट्रेडिंग था, वो ट्रेडिंग ठीक ढंग से चल रहा था। ओके, अलग अलग प्रकार के आइटम्स जो थे, जैसे मतलब आइवरीज हम कह सकते हैं उसे, ऑफिम हम कह सकते हैं, या मेटल्स कहते हैं अलग अलग प्रकार के। तो बहुत ही बड़ी लिस्ट है उनके, जैसे कि मुस्लिन है, ये सब चीजों का हमारे यहाँ से वो एक्सपोर्ट भी करते थे। और बहुत ही सिंपल, जैसे कॉफी वगैरह ये जो पदार्थ थे, तो वो भी पदार्थ वो एक्सपोर्ट करते थे। तो देख चलिए, दूसरा जो पॉइंट है मेरे लेक्चर का, मैंने पहले ही आपको बताया कि जो मेरा लेक्चर है दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ द एस्पायरेंट्स, दोज हु आर गोइंग टू प्रिपेयरिंग फॉर द वेरियस काइंड्स ऑफ द एग्जामिनेशन। जैसे कोई यूपीएससी एनडीए की परीक्षा की तैयारी, एग्जाम की कोई प्रिपरेशन कर रहा है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का कोई प्रिपरेशन कर रहा है, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अलग अलग जो होती है, जैसे हमारे महाराष्ट्र की मतलब एमपीएससी है, तो कोई भी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन, या यूनिवर्सिटीज के जो छात्र होते हैं, जो कि मतलब यूनिवर्सिटी की जो डिग्री होती है, मतलब यूजी हो सकती है या पीजी हो सकती है, तो ये यूजी पीजी के स्टूडेंटों के लिए भी जो ये पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करते हैं,
या वो हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये मतलब इंडिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो हिस्ट्री के बारे में, प्लस फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द फाउंडेशनल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों भी सब्जेक्ट को मैं साथ ही साथ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, तो काफी स्कोप है मेरे लेक्चर के लिए। तो देखिए ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अपनी जो रूट्स है वो रूट्स जब बंगाल में मतलब स्ट्रांग बना रही थी, तो उस जमाने में वहां की स्थिति कैसी थी। देखिए वहां पर जो एक नवाब थे, मतलब सिराजुद्दौला का एक इंपॉर्टेंट रोल रह चुका है। मतलब सिराजुद्दौला ने जो मतलब कंपनी के जो ऑफिसर थे, कर्नल रॉबर्ट क्लाइव, उनके साथ बड़ा युद्ध स्टार्ट किया था। पर न जाने उनके जो कमांडेंट थे, मतलब जो सेना के वहां उनके जो प्रमुख थे मीर कासिम, उन्होंने कुछ मतलब करप्ट होके उनको मतलब डिफीट कर दिया, वो बाद में हम देखेंगे। तो देखिए बंगाल की स्थिति क्या थी। द नवाब्स ऑफ द बंगाल वेर द हेरेडिटरी रूलर। ये हेरेडिटरी का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे दादा परदादाओं से हमें जो कुछ विरासत में मिलता है उसे कहते हैं हम हेरेडिटरी। अगर मराठी में बताए कॉन्सेप्ट को, तो हम ये कहते हैं मतलब एक हमें गिफ्ट मिलना चाहिए। मतलब जैसे जैसे खेती है, मान लीजिए मुझे 10, मेरे पिताजी को 10-12 बीघा खेती है, तो ये खेती हमारे भाइयों को ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो इस प्रकार ये हेरिडिटी होता था। और जैसे पहले अगर कोई एक मतलब नवाब थे, तो ये नवाब का जो बच्चा है, नवाब का जो लड़का है या बॉयज है, तो है लेटर ऑन ही बिकम द he will achieve the same position and he become the again nawab of the same region as a hereditary, वंशानुवंशिक, जैसे हम मराठी में उसे कह देते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो नवाब थे, तो वो नवाब मतलब जो मुगल सम्राट थे, ठीक है, द नवाब ऑफ द बंगाल वाज द डिफैक्टो इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ द 3 प्रोविंसेस। मतलब ऐसा माना जाता था कि देखिए ये जो बंगाल है, ये बंगाल का जो ईस्टर्न मतलब ईस्टर्न रीजन में बंगाल आता है, तो वहां का जो भी मुगल सम्राट, वहां का मुगल सम्राट यदि ये नवाब है वो रीजन का, तो वो डिफैक्टो कौन है, ही इज द डिफैक्टो ऑफ द बंगाल सूबा। बंगाल सूबा का ये अगर कोई मतलब एक हेरेडिटरी रूलर है, तो ये सब रीजन का वो मालिक है, वो हुकुमशाह ये रीजन का। या मान लीजिए कि वो बंगाल पर ही अपना राज करेगा, बिहार पर भी करेगा, और साथ ही साथ वो उड़ीसा तक अपना जो है तो पावर एक्सेस करेगा। ठीक है, पावर इस्तेमाल करेगा। दैट इज द डिफैक्टो। डिफैक्टो का मतलब आपको पता मतलब समझ में आ गया। ही वॉज द रूलर ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल। बंगाल के भी वो नवाब है समझो, बिहार के भी है और उड़ीसा के भी है। तो ये सब राज्य, ये सब तीनों रीजन जो आज हमारे अलग अलग स्टेट है, तो ये स्टेट को अगर वो रूल कर रहे तो उनको कहना कि डिफैक्टो और मतलब द डिफैक्टो इंडिपेंडेंट रूलर, उनका डिफैक्टो इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, एंड दे आर ऑफन रेफर्ड टू एज द नवाब्स ऑफ द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और उनको क्या कहते थे, वो मतलब नवाब है बंगाल के भी, बिहार के भी और उड़ीसा भी की, दैट इज ए डिफैक्टो इंडिपेंडेंट रीजन्स नवाब। तो देखिए देयर चीफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनके जो चीफ थे वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स बिकम द फर्स्ट नवाब, एंड द नवाब स्पेशली अंडर द रूल ऑफ द अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान जो थे वो जब 16 साल के थे, तो वो रीजन के वो डिफैक्टो नवाब बन गए। तो उस जमाने में क्या हुआ था, ही वेर और वेरी वेरी हेवीली एंगेज्ड। नवाब जो थे अलीवर्दी खान मतलब बहुत ही बड़ी मात्रा में एक युद्ध जन्य स्थिति में अपना एक मतलब वो एंगेज हो गए। और उस जमाने में जो था तो युद्ध बहुत चल रहे थे, जैसे कि मराठों के साथ भी उनके कई वार्स हो चुके थे, एंड ही वाज हेवीली एंगेज्ड इन द वेरियस वार्स अगेंस्ट द मराठों के बीच भी, मराठों के साथ भी जब उनका युद्ध हुआ था, और कई और युद्ध हो चुके थे। तो उनका ध्यान अपने बंगाल की तरफ नहीं था, पर उन्होंने बाद में ये कह दिया कि ही हैज टर्न्ड दिस अटेंशन टू रिबिल्डिंग दी
ईस्टर्न बंगाल और टू रिस्ट्रक्चर द बंगाल। बंगाल के ऊपर फिर बाद में ध्यान देना बहुत ही जरूरी उनको लगा। तो देखिए, द नवाब ऑफ द बंगाल ओवरसॉ द पीरियड ऑफ द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जब मतलब अलीवर्दी खान थे, तो अलीवर्दी खान के समय में जो बंगाल को एक प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के आइज से देखा जाता था। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? वो ये रीजन है जहां बहुत ही बड़े मात्रा में मेटल्स है, मिनरल्स है, और साथ ही साथ जो लैंड वहां की थी, जो हुगली रिवर हो या भगीरथी हो या ब्रह्मपुत्रा का जो मतलब बेसिन है, वो बेसिन जो था बहुत ही फर्टाइल था। वहां पे कॉटन, मुस्लिन और बहुत ही मतलब स्पाइसेस के सारे आइटम्स वहां पर अवेलेबल थे। और उनका जो ट्रेडिंग था, तो वो ट्रेडिंग का मतलब यह है कि इट वाज ड्रेनिंग टू द यूरोप्स, और दे वर एक्सपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम द इंडिया, एंड इट वाज हेल्पिंग फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूरोप। तो यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक एक्सेलरेट करने के लिए जो रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पे था, उसे कहते प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। Okay, and this was the proto-industrialization. The Bengal, Bihar, Orissa, the triangles was in major production centers for the cottons and muslins, silk, cloth and ship buildings. मतलब शिप बिल्डिंग के लिए जो एक पानी के ऊपर फ्लोटिंग करने वाले जो अलग अलग प्लांट्स होते, जो वुड्स होते हैं, वो भी प्लांट्स वो कोस्टल रीजन में अवेलेबल थी। और साथ ही साथ गन पाउडर भी हमारे यहाँ पर मतलब मिलता था, जैसे कि उसके ऊपर प्रक्रिया करने के बाद नाइट्रेट एज ए सल्फेट, वो भी युद्ध के लिए एक बेसमेंटल या बेसिक सामग्री समझी जाती है। ये नाइट्रेट का इंपॉर्टेंस जो होता तो मतलब फर्टिलाइजर में भी होता है, ये भी सब चीजें थी। और द मेटल वर्क, जैसे आयरन, ओडिशा की अगर आप बात करें, तो अगर आपने जियोलॉजी ऑफ ओडिशा देखी तो आपको ये देखेगा कि देयर वाज ए ओरोजनी, मतलब वहां पे बहुत ही सारे मतलब हिमेटाइट, मैग्नेटाइट, चाल्कोपाइराइट और अलग अलग जो ओर्स है, तो ये ओर्स के ऊपर उन्होंने प्रोसेस करके अपना जो है तो बिल्डिंग मतलब उसके ऊपर प्रोसेस करके स्टील बनाना, आयरन एक्सपोर्ट करना, ये सब चीजें कंपनी ने स्टार्ट की और कंपनी बहुत सारा पैसा कमाने लगी। The factories were set in the Murshidabad, Dhaka, Patna, Sonargaon, Chittorgaon, Jhansi, Kosim Bazar, Balasore, Pipeli and Hooghly among the other cities, टाउन्स एंड द पोर्ट्स। ये जो कोस्टल रीजन था, ये कोस्टल रीजन में बहुत सारे जगह पे, हुगली के जैसे जगह पर कोसिम बाजार, ये कासिम बाजार या राजशाही, ये अलग अलग जगह पर उन्होंने क्या किए, अपने ऑफिसेस उन्होंने बना दिए थे कंपनी ने, और अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये इस प्रकार की है कि चलिए कंपनी ने क्या किया, अपना जो कारोबार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन हो रहा था, और कंपनी का जो ध्यान था अब बंगाल की जो लैंड थी उसके ऊपर थी। और ये लेक्चर में हम एक चीजें देखेंगे कि हाउ Robert Clive, how the war was fought again in between the Siraj-ud-Dौला और रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव जो एक मतलब बहुत बड़े कमांडर थे, मतलब मिलिट्री में एक वो कर्नल थे, ये एक कमांडर थे, कर्नल थे, और उनका जो एक एटीट्यूड था वो काफी मतलब स्ट्रैटेजिक था। जैसे मतलब बहुत ही अलग प्रकार की उनकी सोच थी। जैसे कोई प्रांत के ऊपर अगर कब्जा करना है तो उनके साथ यदि हम डायरेक्ट बैटल नहीं कर सकते, तो अंदर के अंदर ही किसी को पपेट बनाना, किसी को चमचा बनाना, और फिर बाद में जो है तो सिस्टम को अपने काबू में ले लेना, ऐसी उनकी एक मतलब नीति रही थी। ये बहुत ही मतलब लंबे मतलब सालों साल उन्होंने जो है तो कंपनी के लिए सर्विस दी थी। पहले एक वो कर्नल के रूप में आए थे एज ए चीफ ऑफ द आर्मी, मतलब जैसे बड़े एक तबके के मिलिट्री को ये रूल करते थे, उनसे लेकर के बाद में वो गवर्नर बन गए, और गवर्नर बनने के बाद वो मतलब 1665 में और रिटर्न आ गए इंडिया में, और रिटर्न आने के बाद उन्होंने और मतलब जो ईस्टर्न रीजन था, खास करके जो यूपी वो जो रीजन था, वहां के नवाबों के साथ भी उन्होंने काफी युद्ध किए या उनके साथ जो है तो सेटलमेंट किया। तो ऐसा उनका हिस्ट्री है, ठीक है।
तो अभी स्टार्ट करें हम 1725 टू 1774 का जो ये स्पैन ऑफ टाइम है, ये टाइम की हम बात करें तो ये लेक्चर में हम ये देखेंगे, ये मतलब स्लाइड में ये देखेंगे कि हाउ द 1757 जो बैटल ऑफ प्लासी थी, मेरी जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था, वो जैसे दो युद्ध इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में, जैसे अगर बात की जाए हिस्ट्री की तो ये इंपॉर्टेंट मतलब ये पहला जो है तो ये 1757 का प्लासी का एक वार है। उसके बाद जो 1858 का जो वार है, जो बड़ा नेशनल संग्राम उसे कहा गया है, तो ये युद्ध एक इंपॉर्टेंट है। उनके अंदर जो है तो लगभग 100 साल का डिफरेंस है। तो देखिए ये जो प्लासी की जो लड़ाई थी, द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी की आर्किटेक्ट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थे? ये रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव जो है एक बड़े ही मतलब होशियार चतुर इंसान थे। उन्होंने क्या किया? कंपनी का डेवलपमेंट किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्होंने विस्तार किया, और विस्तार करने के बाद द फाउंडर ऑफ द ईआईसी, मतलब ईस्ट इंडिया का मतलब पहले जो रॉबर्ट हॉकिंग्स आए थे हमारे जहांगीर के दरबार में, उन्होंने या पहले जो मतलब एलिजाबेथ ने परमिशन दिया था कुछ मर्चेंटों को या कुछ व्यापारियों को यूरोप के, तो जब वो ईस्ट इंडिया नहीं गई थी, फिर बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया उसको नाम दिया था, दैट इज ईआईसीज और ईस्ट इंडिया कंपनीज फार्मर, that founder is or the founder was known as the Robert Clive. Okay, he was a founder and the first British government of the Bengal presidency and the key architect of the British East India Company, the rule of the Bengal and won the battle of the Plassey in the 1757. प्लासी का जो युद्ध का जो मतलब संग्राम था, वो संग्राम उन्होंने ही मतलब किया था एंड लेड द फाउंडेशंस ऑफ द कंपनी इन द इंडिया। इंडिया में उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी। तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे, ये रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत ही सारा जो हमारा मतलब खेती से कनेक्टेड उनका, उन्होंने जो भी रेवेन्यू या जो भी टैक्सेस जैसे राजस्व कहते हैं हम उसे, तो टैक्सेस उन्होंने कलेक्ट किए थे। ओके, द स्कोप ऑफ मतलब पहले भी मैंने ये लेक्चर के बारे में बता दिया था कि इंपॉर्टेंट है। देखिए द फाउंडर ऑफ द ईआईसी और ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इज रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने क्या किया था, उनका जो डिटेल दिया है 1774 तक उन्होंने क्या किया था, हमारे यहाँ पर जो राज किया था, ठीक है। एंड ही वाज आल्सो नोन एज ए क्लाइव ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी। ये पहले कर्नल थे, एक युद्ध में उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया था कंपनी के लिए। खाली उन्होंने उनका जो युद्ध का जो नीति थी, उनका जो एक्चुअली जो बैटल्स उन्होंने किए, तो कई सारे बैटल्स किए। मतलब चांदा साहब थे जो कर्नाटक और कर्नाटक वार में भी उन्होंने हिस्सा लिया था, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के मतलब ईस्ट से साउथ ही, वो साउथ की तरफ भी उन्होंने युद्ध किए थे। नाउ ही बिगन एज द राइटर, ओके, ही टर्म्स यूज्ड एज एन ऑफिस ऑफ द क्लार्क, उनको ऐसा कहा गया था कंपनी का, ओके। एंड उन्होंने क्या किया था, बहुत ही रैपिड उनका इकोनॉमिक ग्रोथ करके लिया था। जैसे 59 करोड़ एंड 60 लाख यूरोज, जैसे उन्होंने जो कंपनी से रिवेन्यूज कलेक्ट करके जो संपत्ति वेल्थ जो इकट्ठा किया था, वो 2020 के हिसाब से वो था 59 करोड़ एंड 60 लाख यूरोज, ठीक है। खाली उन्होंने ज्यादा कलेक्शन करके वो हमारे इंडिया से फॉरेन नहीं चले गए, बल्कि उन्होंने ये भी किया कि जो उन्होंने पपेट बनाया था मीर जाफर, तो ये मीर जाफर की वजह से जो रॉबर्ट क्लाइव थे, वो उन्होंने अपना बैटल मतलब उसमें उनकी विक्ट्री हो चुकी थी, तो वो मीर जाफर को भी इन्होंने लगभग 9 करोड़ एंड 30,000 9 करोड़ एंड 30 लाख यूरोज उन्होंने उनको भी दिए थे, मीर जाफर को। तो इस प्रकार से क्या हो रहा था, कंपनी के जो ऑफिसर थे वो लैविश बन गए थे, उनका लाइफस्टाइल बहुत ही मॉडर्न हो चुका था, बहुत ही पैसा का मतलब इस्तेमाल करके वो कंपनी के ऊपर मतलब जो ईस्टर्न कमांडेंट है आज का या ईस्ट जैसे बंगाल है, तो वो लोगों के ऊपर बहुत सारा उनके वजह से प्रेशर आ रहा था। तो देखिए मतलब 15 करोड़ एंड 60 लाख यूरोज उन्होंने कलेक्ट किए थे 2023 के मतलब रेट के अनुसार। और ये जो
ये थे उनके मतलब पपेट कहो या जिनको बाद में उन्होंने आमिष दिखाया था रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को। तो इस प्रकार कंपनी के ऑफिसरों ने बहुत सारा वेल्थ कलेक्ट किया था। ठीक है, तो ये एक्सपांशन करने के बाद जो है तो कंपनी क्या हुई थी, कंपनी ग्रो हो रही थी। ही इज द, ये जो देखिए देखिए आप, ये मतलब रॉबर्ट क्लाइव और ये जो मीर जाफर थे, उनके उन दोनों के बीच जो सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला, उनके बारे में उनके दोनों के अंदर जो तो प्राइवेट मीटिंग हो चुकी थी कि यदि अगर हम सिराजुद्दौला के साथ अगर हम युद्ध करें तो ये सिराजुद्दौला के साथ युद्ध करते समय आप खामोश रहिए, आप सैन्य को कमांड मत दीजिए। तो वैसे ही मतलब अगर ये सिराजुद्दौला को डिफीट हमने करने के बाद आपको बंगाल का नवाब बना देंगे आप। ठीक है, ये बंगाल का नवाब हम आपको बना देंगे। तो ये उन्होंने क्या किया था, उनको लालूच दिखाई थी। तो इस वजह से हमने जो है तो प्लासी का युद्ध जो तो हार गए थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला एक बहुत ही बढ़िया शासक थे। अगर उनकी हिस्ट्री देखी जाए तो उनके साथ उनके पास जो आर्म्ड फोर्स था या उनकी जो सेना थी वो बहुत बड़ी सेना थी। उनके पास नियर अबाउट 50 जैसे देखिए कि 50,000 उनके पास जो थे तो मतलब वो आर्टिलरी क्या कहते हैं हम उसे, जो लैंड आर्मी थी या आर्मी थी उनके पास, और 18,000 उनके पास जो थे वो घुड़सवार थे। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया था, जो सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला ने ये पूरा जो मिलिट्री था वो उन्होंने खुद खड़ा नहीं किया था। उनके जो दादा थे तो अलीवर्दी खान, उनके जो दादा थे सिराजुद्दौला के वो थे अलीवर्दी खान। ये अलीवर्दी खान की जो पहली जो आर्मी थी उनको ये विरासत में मिली थी। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है जो एक रूलर के पास 50 मतलब 60-70 हजार के आसपास यदि आर्मी हो, तो क्या कोई फॉरेनर 3-4 हजार लोगों के बलबूते के ऊपर उसको क्या डिफीट कर सकता है क्या? तो इट इज नॉट पॉसिबल। पर ये पहले ही साजिश रची गई थी ये मीर जाफर द्वारा कि हम खामोश रहेंगे। और उस दौरान जो और मतलब जो बहादुर सैनिक थे, जो सेना का और भी मतलब नेतृत्व करने वाले थे, मीर मदान नाम के एक बहुत ही एक लड़ाकू जो एक कमांडेंट थे, एक बड़े सेनापति थे, वो मारे गए ये ब्रिटिश के द्वारा। और तो इन सब चीजों का प्रेशर आने के बाद जो सिराजुद्दौला है, तो सिराजुद्दौला वो बैटल छोड़ के भाग गए, सीधा मुर्शिदाबाद चले गए। और उसके बाद जो तो कंपनी ने पूरा अपना EIA ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा फोकस बंगाल के ऊपर कर लिया। ये हिस्ट्री है। तो देखिए ये जैसे कि 1757 में प्लासी में डिफीट होने के बाद सिराजुद्दौला तो फिर अपना जो कारोबार है EIA ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये पूरा वहां पर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो कंपनी बहुत सारा वेल्थ इकट्ठा कर रही थी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो उनकी चर्चा जो है तो ब्रिटिश के पार्लियामेंट में हो रही थी। तो बाद में क्या हुआ, 1773 के बाद 1773 में एक कंपनी को कहीं ना कहीं तो हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि कंपनी का जो इंक्रीजिंग एक्सपांशन है, तो ये इंडियंस को भी मतलब तकलीफ हो रही है उसकी। और तो और कंपनी का कोई ज्यादा बेनिफिट ब्रिटिश पार्लियामेंट को नहीं हो रहा था, क्योंकि एक पैरेलल सरकार चला रही थी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसके क्या रीजन है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो है तो लाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं तो रोक लगाने के लिए। पर क्या एक खास रीजन था जिसकी वजह से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को अमेंड करना पड़ा, नया लाना पड़ा उनके संसद के अंदर? तो उसका रीजन एक ये है कि जो लेविस, जो ज्यादा मतलब आयश व आराम करने वाले जो कंपनी के ऑफिसर थे, रॉबर्ट क्लाइव हो या अदर गवर्नर्स तो हो, तो उन्होंने क्या किया था कि ये कंपनी जी थी तो कंपनी का बहुत सारा मतलब घाटे में चली गई थी कंपनी। देखिए, तो एक 5 रीजन है, 5 रीजन की वजह से क्या हुआ था, बंगाल में एक हड़ताल हो चुका था, बंगाल में ड्राउट आ गया। 1970 की बात अगर हमने की तो उसमें यह दिखता है कि इफ यू कैन गो बैक टू द हिस्ट्री,
अराउंड 1970 ये सॉरी 1770 ये 1770 से लेकर के 1772 तक जो था, तो वहां पर एक सूखा गिर गया था, उसे फेमाइन कहते हैं हम। फेमाइन का मतलब यह है कि जमीन के प्लांट पौधे जो है मतलब क्रॉप से कोई यील्ड नहीं है, तो कोई यील्ड नहीं है और सूखा है, पानी की बहुत कमी है, ग्राउंड वाटर हैज डिप्लीटेड एट टू मच लेवल, टू मच डीपर लेवल। तो इन सभी का जो इम्पैक्ट था, तो लोग अपनी जान खो रहे थे। लगभग 1/3 वो एक 1/3 जो पॉपुलेशन था, मतलब मिलियंस ऑफ द पीपल वेर लॉस्ट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ द फेमाइन। ये स्थिति बंगाल में अब थी। जैसे देखिए यहाँ पर एक्सप्लॉयटेटिव टैक्सेस, और वो स्थिति में जो कि देखिए ये लोग कितने परेशान है, भूखे हैं बेचारे, उनके बच्चों को खाना पीना मतलब खरीदने के लिए उनके पास फॉर ब्रेड एंड बटर के लिए भी जब पैसा न हो, तो ऐसी स्थिति में भी क्या हो रहा था, खेती में कोई उत्पन्न न हो, कोई मतलब कोई यील्ड नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं है, सब स्थिति जो है तो बहुत ही फीबल हो चुकी है। और वैसे स्थिति में भी जो एक्सप्लॉयटेटिव टैक्सेशन जो था ईआई से, तो ये कंटिन्यू था। ये रीजन है जो रेगुलेटिंग एक्ट लाने के जो रीजन है उसमें से। और एक है बैंकरप्सी है, कंपनी जो है तो घाटे में चली गई, कंपनी के पास अब कोई मतलब बैलेंस नहीं है। दूसरी बात है मिसमैनेजमेंट एंड द लैविश करप्शन, कंपनी घाटे में क्यों चली गई, मिसमैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी नहीं है, और जो पैसा इकट्ठा किया है वो खुद के सेल्फिश, बाकी खुद के ऐशोआराम के लिए कंपनी के ऑफिसर यूज करे। एंड द करप्शंस ड्रेन्ड द कंपनीज फंड्स बाय 1772, इट वाज नियर द बैंकक्रफ्ट। अब पूरा मतलब दिवालखोरी में वो कंपनी चली गई, पूरा मतलब कंपनी जो तो निगेटिव में चली गई। तो दूसरी जो है तो करप्शन भी हो रहा था, रैम्पंट और ब्रेबरी एंड ग्रीड था एक कंपनी के ऑफिसर के अंदर, कि कोई भी जो हमारे इंडिया के नवाब थे उनसे कोई भी मतलब गिफ्ट ले लेना, उनसे कोई चीजें ले लेना नवाब से, एंड इट वाज आल्सो द रीजन ऑफ द करप्शन। एंड द लास्ट वन इज, जैसे मैंने ये कहा आपको कि पहले बंगाल में क्या था, फेमाइन था 1970 से लेकर के 72 तक, एंड एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज एंड निग्लेक्ट दी caused the devastating famine that killed the millions of लोगों ने अपनी जान खोई। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव चॉइस, द फिफ्थ रीजन वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव चॉइस। कंपनी ठीक है, कंपनी ने अपना बहुत सारा कारोबार चला लिया, तो जैसे कि 1613 से लेकर के या 1668 हम कहेंगे, क्योंकि मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में उन्होंने की जो ऑफिस थे, तो 1668 से 1673 मतलब 1668 से 1773 तक कंपनी ने जो कुछ भी किया वो ठीक, मतलब पार्लियामेंट ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। पर उनके अंदर कोई मतलब ऐसे ऑफिसर नहीं थे, कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट नहीं थे, कोई लॉ के कोई ज्ञानी नहीं थे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, एक लॉ की मतलब लॉलेसनेस, वी कैन कॉल देम एज ए, अप टू 1773 ये जो कंपनी की जो स्थिति थी, इट वाज ए लॉलेसनेस। ये लॉलेसनेस मतलब कोई कानून नहीं है, नो कानून, ओके, कानून कोई भी नहीं है कंपनी का एक एडमिनिस्टरिंग के लिए। तो दैट वाज आल्सो द ड्यूअल सिस्टम्स ऑफ द गवर्नेंस, दैट इज द रेवेन्यू बाय द कंपनी। कंपनी अपना खाली टैक्स ले रही थी, लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी, ओके। एंड नॉमिनल रूलर जो थे, नवाब थे, वो क्या कह रहे थे, वो मेकिंग द लॉलेसनेस कंफ्यूजन इन द इनएफिशिएंसी। कंपनी के ऑफिसर खाली पैसे में, टैक्सेशन में इंटरेस्टेड थे, मतलब वो राजस्व में इंटरेस्टेड थे, पर कोई ठीक ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा था। तो देखिए, तो ये सब स्थिति थी, और ये सब स्थिति का जो इंपैक्ट हो गया, तो कंपनी के ऑफिसरों ने क्या किया, एक दिन अभी चलो बोले हमारे पास तो कोई बैलेंस नहीं रह चुका है, तो चलिए हमें जहां से ये चार्टर एक्ट मिला था, रानी एलिजाबेथ तो पार्लियामेंट से बिलोंग करती है, तो क्यों ना हम पार्लियामेंट को और एक बार रिक्वेस्ट करें हमारे कि हमें कुछ पैसा उधार दीजिए, या कोई हमें डेप्ट दीजिए, कोई लोन दीजिए। तो ये लोन लाने के लिए, तो लोन कितना हमें जरूरी है, तो लोन मस्ट बी अप टू 1 मिलियन यूरो। ये 1 मिलियन यूरो जो है तो उसकी डिमांड कंपनी के लोगों द्वारा ब्रिटिश के पार्लियामेंट में जाने के बाद, करने के बाद, वहां के पार्लियामेंटेरियन जो थे, जो एमपीज थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द ब्रिटिश,
और वहां के खास करके जो फ्रेडरिक नॉर्थ कहते हैं या लॉर्ड नॉर्थ कहते हैं, जिन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर थे, और ये प्राइम मिनिस्टर के सामने ये कंपनी के जो ऑफिसर थे उन्होंने बुहार लगाई। कि क्या बुहार लगाई? कि उन्होंने ये कहा, उनकी जो बुहार थी कि हमें इतना लोन दीजिए तब जाकर के हमारी कंपनी ठीक ढंग से चलेंगी, और बाद में जो है तो हम हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करवा देंगे। कंपनी की ये स्थिति देख के प्राइम मिनिस्टर यानी लॉर्ड नॉर्थ साहब को टेंशन आ गया, पार्लियामेंट को टेंशन आ गया। ये बोले ठहरो, 1 मिलियन यूरो तो छोड़ दीजिए, हम आपको 1 यूरो भी नहीं देंगे, 1 यूरो भी नहीं देंगे, और वहां से अब हम आपको हटा देंगे। चलो निकलो वहां से, कंपनी छोड़ दो और सीधा उधर यूरोप में आ जाओ, आप मतलब इंग्लैंड में आ जाओ। तो ये सब चीजें होने लगी, और वो बोले कि हम नया कानून लाएंगे, और कंपनी का जो आपका जो कुछ भी वहां कारोबार आपने किया है वो आप पार्लियामेंट देखेंगी। एंड जैसे आप देखिए, इन मतलब जो पिट्स एक्ट लाया गया था, तो पिट्स एक्ट में कंपनी ने मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये कहा कि जो EIA का जितना भी कैपिटल है, तो वो कैपिटल यानी उनकी जो प्रॉपर्टी इंडिया में, दैट विल बी द पोजेशन, दैट ब्रिटिश पार्लियामेंट्स पोजेशन, ब्रिटिशों का ये पोजेशन होगा। उन्हें उनके ऊपर हुकूमत होगी, क्राउन की हुकूमत होगी, पार्लियामेंट की हुकूमत होगी। आप कंपनी के ऑफिसर हो, तुम चलो निकलो, आपने बहुत ही बुरी स्थिति ला ली है इंडियंस के ऊपर, और आपको कोई मतलब ज्ञान नहीं, कोई कानूनी आपको ठीक ढंग से आपको नहीं आता है। तो ये होने के बाद उन्होंने 5 अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने के लिए जो है तो ये रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे, तो इट वाज द फर्स्ट एक्ट, एंड दैट एक्ट, और इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन एंड द पार्लियामेंटेरियन कंट्रोल ऑन द EIA ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर काम कर रही थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर जो काम कर रही थी, तो उनके ऊपर कंट्रोल लाने के लिए फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था 1773 में। तो ये सेंट्रल सिस्टम बनाने के लिए, एक कंट्रोल करने के लिए सिस्टम को, तो क्या किया गया, करना चाहिए? तो उन्होंने पहली बात जो की, तो पहली बात है दी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग हमें करना पड़ेगा। वहां के जो गवर्नर थे, ये गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल बोल के उनका जो स्टेटस था, उनका जो पोजीशन था, वो एलिवेट करना। दूसरी बात जो थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग में, जो काउंसिल थी उसके जो मेंबर है तो वो बढ़ाए। 4 मेंबर काउंसिल्स वाज इन अपॉइंटेड, मतलब कोई काउंसिल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो ये एग्जीक्यूटिव के लिए एक 4 मेंबर काउंसिल बना दी। मतलब 4 प्लस एक वारेन हेस्टिंग जो कि वो गवर्नर थे, बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ऐसा उनको एक नामाभिधान दे दिया, एक पावर दे दिया। तो ठीक है, ये 2 चीजें हो गई। दूसरी चीज तो थी दैट इज ए सेंट्रलाइजेशन पावर को सेंट्रलाइज करना चाहिए। मतलब जो बंगाल है, और बंगाल के नीचे साउथ में जो बॉम्बे है या मद्रास है या चेन्नई है, तो उनको एक सबऑर्डिनेट बोल के काम करना पड़ेगा अंडर द रूल ऑफ द वारेन हेस्टिंग। सबऑर्डिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंसीज, जो दूसरी प्रेसिडेंसीज थी, मैंने पहले आपको बताया कि वो प्रेसिडेंसीज विल बी ओके, सी द in the centralization, subordinations of the presidencies, maybe the Bombay and the Madras were placed under the control of the Governor General of the Bengal, especially regarding the war and the diplomacy. कोई युद्धजन्य स्थिति हो या कोई टैक्टिक्स हो, तो ये जो भी कुछ मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव या मिलिट्री से कनेक्टेड जो भी चीजें हैं वार जन्य स्थिति के रिगार्डिंग, तो ये सब चीजों का यदि कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो वहां पर जो बंगाल है, तो बंगाल के अंदर जो ये वारेन हेस्टिंग्स साहब बैठे वाले हैं एज ए गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल। पहले वो गवर्नर थे, बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उनको बना दिया। तो ये बंगाल प्लस मतलब बिहार और उड़ीसा, ये जो बंगाल सूबा था, ये बंगाल सूबा का ये सब
कारोबार देख लेंगे, और मद्रास, बॉम्बे, ये सब जो रीजन है वो सबऑर्डिनेट होंगे। तो उसके लिए उन्होंने और क्या करना पड़ेगा हमें, तो थर्ड स्टेप वाज द लॉ, द रूल बाय लॉ। तो लॉ बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। रूल बाय लॉ से ही काम चलेगा। कंपनी के ऑफिसर को तो ये सब चीजें पता नहीं है। तो रूल बाय लॉ और जुडिशियल रिफॉर्म लाया गया। जो आज हमारे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, दैट इज एससी, तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है तो उनका जो रूट है तो यहां पर कहीं ना कहीं तो फिक्स है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कलकत्ता। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता कब बनाया गया, अकॉर्डिंग टू द 1773 अमेंडिंग एक्ट और दैट रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट की तहत 1774 में, एक साल बाद, ये देखिए एक साल बाद उन्होंने क्या किया, दे वेर स्टार्टेड दी जुडिकेचर न्याय व्यवस्था उन्होंने स्टार्ट की। और उसमें आज जो हमारे सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया के बड़े मतलब सुप्रीमो है लॉ, द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे वो सुप्रीमो है, तो उस जमाने में उन्होंने क्या किया, सीजे का, चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल बोलिए या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस टाइम में जब कंपनी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब रूल पारित किया था तो उन्होंने चीफ जस्टिस बनाया। चीफ जस्टिस का एक पद उन्होंने निर्माण कर दिया उनसे। द कोर्ट ऑफ द कलकत्ता, द सुप्रीम कोर्ट, द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ द जुडिकेचर वाज एस्टैब्लिश्ड इन द फोर्ट विलियम ऑफ द कोलकाता। ये फोर्ट विलियम में उन्होंने 1774 में एक कोर्ट स्थापित किया गया, सुप्रीम कोर्ट। और वहां के जो चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश जो है, द सुप्रीमो है लॉ एंड ऑर्डर के, तो ये जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है तो उन्हें जो बनाया गया था वो थे सर इलिजा इम्पे को उन्होंने पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द जुडिकेचर ऑफ द फोर्ट विलियम कलकत्ता। ये कोलकाता का जो जुडिकेचर था उसके लिए पहला सीजे बना दिया गया, चीफ जस्टिस। और चीफ जस्टिस साहब के साथ उनको असिस्टेंट करने के लिए और भी कुछ मतलब लॉयर, द लीगल ऑफिसर बनाए गए, बड़े मतलब लेवल के वे थे। जस्ट मतलब वो जो थे बड़े एक न्यायाधीश बनाए गए थे और जस्टिस बनाए गए थे। और ये जो जस्टिस थे वो 3 थे, और वो 3 प्लस ए 1 सीजे एज ए सर दैट इज इम्पे, ये कारोबार चला रहे थे, ठीक है। तो दूसरी बात और क्या करना पड़ेगा, 4 तो पॉइंट हो गए, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, जुडिकेचर फॉर्म करना पड़ेगा और द पार्लियामेंट्री करून। देखिए कंपनी तो अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर रही है, कंपनी तो ट्रेडिंग कर ही रही है, जैसे कि उसके ऊपर हमें कुछ तो कंट्रोल लाना पड़ेगा। उनका जो कारोबार क्या चल रहा है, कितना उनका आय है या कितना जैसे कलेक्शन हो रहा है उनके द्वारा, टैक्सेस कितना लिया जा रहा है, तो उनके सबके ऊपर हम क्या करेंगे, हम अपने पार्लियामेंट में उनके ऊपर वॉच रखेंगे। तो हमारे जैसे ये पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में कोई भी कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी जो बंदा है तो आएगा और हमें रिपोर्ट देगा। किस बारे में रिपोर्ट देगा, दी पार्लियामेंटेरियन कंट्रोल हमें करना है। तो कंपनी का जो भी रिपोर्ट है, ओके, द रिपोर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन इट्स अफेयर्स एंड द फाइनेंस, कंपनी के जो फिनेंशियल अफेयर्स है, फिनेंशियल का जो कुछ भी उनका कलेक्शन है उसके बारे में हमें ब्रिटिशों को, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को आपको डिटेल्ड रिपोर्ट देना पड़ेगा। ये चौथा रिफॉर्म था। और 5वां जो रिफॉर्म था दैट इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट ट्रेड। कंपनी के जो मतलब एम्प्लॉइज है, कंपनी के जो सर्वेंट है, वो खुद होके खुद के बेनिफिट के लिए कोई काम नहीं करेंगे। इट वाज द 5th important step towards the company's servants were prohibited for accepting the gift। कोई गिफ्ट भी नहीं लेगा, कोई ब्राइब नहीं लेगा किसी से, मतलब करप्शन कोई नहीं होगा। और कोई भी जो एम्प्लॉइज है एज ए इंडिविजुअल वो प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं करेगा। ये सब 5 प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में थे। आप जो है तो गवर्नर का पोजीशन एलिवेट करना है, हमें जो है तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाना है। उसके साथ ही साथ हमें सुप्रीम कोर्ट को और भी असिस्टेंट करने के लिए कुछ लोग हमें रखने हैं। और जो इंडिया में दूसरे जो सबऑर्डिनेट रीजन थे,
टेरिटोरीज, तो उनके अंदर जो तो सुप्रीम चीफ जस्टिस के अंदर वो काम करेंगे, और जो कोई प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं करेगा, इस प्रकार के थे। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल। तो आज हमारा पार्लियामेंट आप देखिए, जैसे कि लोअर हाउस है, अपर हाउस है, वो लोअर हाउस और अपर हाउस से हम क्या करते हैं, पूरे देश के ऊपर एक कंट्रोल करते हैं। तो उसका जो एज ए प्रोटो, मतलब उसका जो कॉपी हो या उनका जो सिस्टम को उस जमाने में, तो ये मॉडर्न पार्लियामेंटेरियन सिस्टम जैसा उस जमाने में काम चल रहा था। तो पार्लियामेंट उस प्रकार हमारी डेवलप हो चुकी थी। तो उसके बाद कुछ और दूसरे भी एक्ट लाए गए, जैसे कि पिट्स एक्ट है। पहले देखिए, ये जो 1773 का ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये रेगुलेटिंग एक्ट जिन्होंने लाया वो भी तो प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के या ब्रिटिशों के या मतलब यूरोपियंस के। तो ये 1784 में दूसरा एक लॉ लाया गया, एंड दैट वाज द पिट्स एक्ट। और ये पिट्स एक्ट क्या है, द बोर्ड ऑफ द कंट्रोल इस्टेब्लिश्ड एंड द कंपनी पुट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। कंपनी के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक बोर्ड बिठाया गया, और कंपनी के जो फिनेंशियल या मिलिट्री अफेयर्स है उनको अलग किया गया, और उनके लिए एक सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया। और दूसरी बात, जो कंपनी का जो ट्रेडिंग था, वो प्राइवेट ट्रेडिंग उन्होंने खत्म कर दी, उनके ऊपर कहीं ना कहीं तो रोक लगाई, और जो है तो वो एक्ट, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाए गए। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रॉपर्टी थी इंडिया में, उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट्स पोजेशन कहा गया, ये हमारी प्रॉपर्टी है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की कि जो तुम लोग हो, आप इधर चलो वापस आ जाओ, नहीं तो उधर दूसरे कुछ काम करो, अदरवाइज यू कैन नॉट डू द ट्रेडिंग। हाँ, अगर आपको ट्रेडिंग करना ही है तो कुछ छोटे कमोडिटीज या छोटे आर्टिकल्स आप बेच सकते हो, जैसे कि टी पाउडर का तुम क्या करो, अपना कारोबार चलाओ, टी सेलिंग करो आप। और यदि आपको और भी ट्रेडिंग करना है तो चाइना के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ये दो प्रोविजन थे पिट्स एक्ट के बाद, जो दूसरा एक्ट लाया गया उसके अंदर। ओके, दैट इज द पिट्स एक्ट में क्या है, आप प्राइवेट ट्रेडिंग मत करो, करना है तो या तो टी बेचो, नहीं तो चाइना के साथ आप व्यापार करो, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा चार्टर लाया गया था, इट वाज 1833 का जो चार्टर है, तो ये चार्टर है, तो उसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल बिकम द गवर्नर ऑफ द इंडिया। मतलब पहले जो सबऑर्डिनेट जो कई हमारे टेरिटोरियल रीजन थे, बॉम्बे थे, चेन्नई और ये जो सब रीजन थे, ये सब बंगाल के मतलब गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल के अंडर आ रहे थे। पर उनका और उन्होंने इलिवेशन कर दिया, सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया। तो ये सेंट्रलाइजेशन करने के बाद द गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल वी मे बी एक्ट एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये 1833 में एक और डेवलपमेंट हो चुका था। और 1833 के बाद 1853 में एक चार्टर लाया गया, और ये चार्टर द्वारा इंडिया में प्रशासनिक सुधार के लिए उन्होंने सिविल सर्विसेज का गठन किया गया उनके द्वारा, ठीक है। तो इट वाज द चार्टर ऑफ द 53, इट वाज प्रोफेसिंग अबाउट द ऑपरेशन, इट वाज ओपन द सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एक्सपांडेड। जो कार्यकारी मतलब जो सिस्टम है हमारी लेजिस्लेटिव, तो मतलब लॉ मेकिंग, तो उसको क्या किया गया, एक सेपरेट उसका एक्सपेंशन किया गया, मतलब ज्यादा कोर्ट्स वगैरह वो ज्यादा मतलब उसके ऑफिसेस बनाए गए, और गवर्नर जनरल को मतलब काउंसिल एक्सपांडेड किया गया। और यूपीएससी जैसे आज हमारी जो एग्जामिनेशन है, उस तरह की जो सिविल सर्विसेज थे, तो इस सिविल सर्विसेज का उस टाइम में गठन किया गया था, ठीक है। दूसरा जो एक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसे कहते हैं द एंड ऑफ द कंपनी रूल एंड द क्राउन रूल। तो मैंने पहले आपको कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अगर हमें पढ़ना है तो दो ब्रांच से हमें पढ़ना पड़ेगा। एक पढ़ना पड़ेगा हमें दी कंट्रोल बाय और दी जो कंपनी की हुकूमत है, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है, एक ब्रांच। और दूसरी जो ब्रांच है, ये ब्रांच होती है स्टार्ट फ्रॉम दी 1858 से लेकर के 1947, जैसे हमारा जो इंडिपेंडेंट एक्ट था, तो ये एक्ट तक हमें पढ़ना है। तो देखिए, ये जो कंपनी का रूल है तो वहां पर 1853 में खत्म हो चुका है,
यूपीएससी जैसे या सिविल सर्विसेज जैसा एग्जामिनेशन का गठन हो चुका है। और 1858 में क्या हो गया है, द एंड ऑफ द कंपनीज रूल और क्राउन रूल स्टार्ट हो गया है। क्राउन रूल मतलब पार्लियामेंट ने अब तक कंपनी के लोगों को कहीं ना कहीं तो थोड़ा मतलब आधार दिया, थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहारा दिया था, जैसे चाय पाउडर बेचो या और कुछ बिजनेस करो। फिर बाद में जो है तो 1858 में कंपनी ने उन कंपनी को पूरे तरीके से हटा दिया गया। और अब चलो आप देखिए अपना जो कारोबार आपको देखना, और वी आर गोइंग टू मेकिंग the rules and regulations to the rule of the India और the entire different जहां तक मतलब कंपनी ने अपनी सत्ता बनाई थी तो वो पार्लियामेंट अब रूल करेंगी उसके ऊपर। और जो लास्ट एक्ट है तो दैट इज 1947, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया बिकम्स द इंडिपेंडेंट ऑन द 15th अगस्त 1947 वाला जो एक्ट है दैट इज द इंडिपेंडेंट एक्ट है। तो उसके बारे में ये जो मेरा लेक्चर था वो डिटेल में था। जैसे 1773 में जो कानून लाया गया था ऐसे रेगुलेटिंग एक्ट, तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में दूसरा भी एक कानून लाया गया था ब्रिटिशों द्वारा, दैट वाज द एक्ट ऑफ द सेटलमेंट। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है, तो उनमें से कई जो क्रीम ऑफिसर थे बड़े बड़े या उनके लिए ये कुछ छूट दी गई थी। और जैसे अगर न्याय व्यवस्था हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर हमने चलाई है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक जियोग्राफिकल लिमिटेशन भी देने पड़ेंगे हमें। और कानूनी जो व्यवस्था है वो कानूनी व्यवस्था में कहीं ना कहीं तो हमें इंडिजनाइजेशन रखना पड़ेगा, इंडिजिनियस लॉ। इंडिजिनियस लॉ का मतलब ये होता है कि जो न्यायालय है वो न्यायालय में इस प्रकार की प्रैक्टिस की जाए कि वहां पर जो मतलब अपीलेंट है या डिफेंडर है तो उनका जो समाज है, उनका जो रीजन है, उनका जो रिलीजन है, वो रिलीजन के कानून, ये रिलीजन के जो मतलब फेथ है उसके अकॉर्डिंग तुम क्या करो, अपना मतलब रूलिंग स्टार्ट करो, अपना जो लीगल जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट करो। जैसे कोई हिंदू का है तो हिंदू कानून के अकॉर्डिंग टू उसको न्याय दीजिए, या कोई मुसलमान है तो वो मुसलमानों के मुस्लिम कानून के हिसाब से उनको जो है तो आप जस्टिस दीजिए। तो इस प्रकार वो सेटलमेंट एक्ट लाया गया। और ये सेटलमेंट एक्ट के बाद जो था वो था पिट्स एक्ट। जो पिट्स एक्ट के बारे में मैंने पहले आपको इंट्रोड्यूस किया है। और इट वाज ए ड्यूअल सिस्टम। ड्यूअल सिस्टम मतलब उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाए गए एंड इट वाज क्रिएटेड टू ओवरसी द कंपनीज पॉलिटिकल और मिलिट्री मैटर्स। कंपनी के जो पॉलिटिकल मैटर है जैसे कि राजकीय मैटर जैसे हम उसे कहते हैं, ठीक है, तो ये मैटर पॉलिटिकल मैटर और मिलिट्री मैटर ये देखने के लिए 6 मेंबर का एक मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखे, ये देखे मिलिट्री कंसर्न इश्यूज एज वेल एज दूसरी जो है तो दूसरे जो मैटर है तो दैट मैटर में बी द पॉलिटिकल मैटर्स, पॉलिटिकल एज वेल एज द मिलिट्री मैटर। और दूसरी जो जैसे हमने ड्यूअल कंट्रोल की बात कर रहे हैं हम, तो वाइल द कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर क्या करेंगे, दे रिटेन द कंट्रोल ऑफ द कमर्शियल फंक्शंस। कमर्शियल का जो है मतलब जो इकोनॉमी से एसोसिएटेड जो चीज है उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल करेंगे। ओके। और दूसरा जो है तो दैट इज द ब्रिटिश पोजेशन। मैंने पहले ही कहा आपको, जैसे 1853 का जो लॉ लाया गया तो उसमें से ये तय हुआ था कि अब ब्रिटिशों ने क्या किया, ओवर दे वर कंट्रोलिंग द टोटल, मतलब 1853 के बाद 1858 में जो पहला कानून लाया गया था उसमें क्या कहा, द क्राउन रूल इज स्टार्टेड। और क्राउन रूल में अब कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं रहा है एंड दैट इज सपोज टू बी द पोजेशन ऑफ द ब्रिटिश। जैसे द फर्स्ट टाइम पहली बार ये कहा गया है कि इंडियन टेरिटोरी से जो इंडिया का जो भूभाग है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वहां में जितने भी ऑफिसेस है इट इज गोइंग टू ऑफिशियली डेसिग्नेटेड एज अ ब्रिटिश पोजेशन। आज जो इंडिया के अंदर प्रॉपर्टीज है ये मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से एसोसिएटेड है, ये अब पूरा ब्रिटिश का पोजेशन हो चुका है। ये ब्रिटिश के हुक्मरान, ब्रिटिश उसके हुक्मरान हो गए। अभी कंपनी का जो कंपनी अब
मतलब जो क्राउन है, हमारे क्राउन का ये लॉ हुआ था। सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, पावर का सेंट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है। ये मद्रास और बॉम्बे को क्या किया गया, स्ट्रिक्टली प्रो मतलब सबऑर्डिनेट बनाया गया। गवर्नर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ द बंगाल, मैटर्स ऑफ द डिप्लोमेसी इन रेवेन्यू एंड द वार्स। ये गवर्नर ऑफ ये मतलब गवर्नर जनरल काउंसिल जो बनाई गई थी बंगाल के लिए, तो ये क्या कर रहे थे, ये डिप्लोमेसी और द रेवेन्यू मतलब जो राजस्व है तो वो सब देख रहे थे, वार भी देख रहे थे कंपनी के मतलब ब्रिटिशों द्वारा ये वार वगैरह देखे जा रहे थे। गवर्नर जनरल काउंसिल भी बनाई गई थी। द गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल्स मेंबर्स वाज रिड्यूस्ड 3, मतलब गवर्नर जनरल्स के जो पहले मेंबर थे उनमें से मेंबर इंक्लूडिंग कमांडर इन चीफ दे कम कर दिए। और इस प्रकार जो है तो एक पिट्स एक्ट के द्वारा ड्यूअल सिस्टम लाई गई, एज वेल एज पावर का जो तो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, ठीक है। ये पिट्स एक्ट जो है तो उसका एक भारी महत्व रहा है। ये हमारे ड्यूअल सिस्टम पिट्स एक्ट 1784 का था, जो उसमें पार्लियामेंटेरियन लॉ एट दैट एस्टैब्लिश्ड ड्यूअल सिस्टम कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने पहले आपको कहा था, ये जो ब्रिटिश के पार्लियामेंट के मतलब ये जो विलियम पिट थे यंगर, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट लाने वाले थे वो भी प्राइम मिनिस्टर थे, और पिट्स एक्ट लाने वाले भी प्राइम मिनिस्टर ही थे। तो इस प्रकार आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन था, ये प्रेजेंटेशन ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड और द स्टार्ट ऑफ द क्राउन रूल वहां तक था। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी अबाउट द क्राउन लॉ राइट फ्रॉम द 1858 टू 1947। उसमें बहुत सारे डिटेल्स होंगे, जिसके अंदर जो है तो हम एक माइक्रो तरीके से बाकी सब रूल्स और रेगुलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।